हेलो स्टूडेंट। अगर तुम्हें वेरिएबल का गेम समझ आ गया है तो मैथ आपको कभी टफ नहीं लगेगी। लेट अस लर्न द रियल मीनिंग बिहाइंड ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। द हार्ट ऑफ अलजेब्रा स्टार्ट हेयर। मैथ्स बोरिंग नहीं होती है, बस समझने का तरीका अलग होता है। चलो लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको लीनियर इक्वेशन की किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पर कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बस आप स्टार्ट करें बेहतर तरीके से। क्या होता है लीनियर इक्वेशन? कभी आपने सोचा है कि जिसको हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, एक्स प्लस बाई पूरा अलजेब्रा है, पूरी मैथ इसके ऊपर डिपेंड है। आखिर क्या होता है? तो कुछ नहीं होता। अ लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। लाइक एग्जाम्पल लिखा है 2x प्लस का 3 इक्वल्स टू 7। हेयर x having the power of 1, that's why it is called linear equation of having variable 1. Now moving to next, linear equation in two variable. That was linear equation in one variable, there is only a x. This is called linear equation in one variable, and this is called linear equation in two variable. Two variable is nothing else an equation containing the variable of 2, like 2x plus का 3y. Here x and y are variable and having the power of 1 and 1. Okay, and using the element of two variable, that is called linear equation in two variables. Solution of a linear equation in two variable. A linear equation in two variables has infinitely many solutions. Like solution in the pair of x comma y which we can understand here. Here is an equation 2x plus का 3y equals to 0. Okay, and we find the so many solution here. If we put in first part x equals to 0, when we put here x equals to 0, now solving this equation, the first part will become be 0 plus का 3y equals to 12. It will be 3y equals to 12, and here the answer of y equals to 4. So now the pair will become here 0, 4. Again, if we put the value x equals to 1, it will be 2 into 1 plus का 3y equals to 12. It will be 3y equals to 12 minus का 2. It will be 12 minus का 2, it will be 10. This gives the result in point. We will not consider the value x equals to 1. We put here x equals to 3. Okay. When we put here x equals to 3, it will become be 2 into 3 plus का 3y equals to 12. 2 3 is 6 plus का 3y equals to 12. Hence y equals to value will become be here 2. So now the pair will become 3, 2. Again, if we put the value x equals to 6 and we solve this equation, then we found y equals to 0. So here again the next pair will become be 6, 0. At last we found the three pair. This will, first one is 0, 4, second one is 3, 2, and third one is 6, 0. Now hence in next part we are putting value again and again, and we found the value of in pair. So that's why it is saying the solution of a linear equation in two variable. A linear equation is nothing. Linear equation in two variable has infinitely many solutions. So this is the method of to finding the infinitely solutions. Now moving to next part, graphical representation. We earlier read it. What is graphical representation? Now again we shows here what is the representation and how the representation of graph will be here. Okay. Now see here. Write the equation 2x plus का 3y equals to 12. Again putting so many x value like 0, 3, 6 and so on. We find the value of y in many parts, and which will be the
pair of this equation, and when we found the pair of this equation, we will put in the graph. When we put here in the graph, we see this when we putting the value of x and y, and when we draw the line will also be in the form of straight. Okay, so this is known as graph of every linear equation in two variables is known straight line. Okay, in next moving we will make the so many graph. Okay, here only we discuss what is graph and what is the graphical representation. Now now we see the 2 point. Just remembering, S intersect means x axis known as x intersect. X axis means here y equals to 0. X axis means y equals to 0, and where will be y axis, it means x equals to 0. This is the intersect of x and y. This is intersect of x and this is intersect of y. Like an example, if 2x plus का 3y equals to 12, here if we put x equals to 0, then we find the value of y. It will be the 0, 4. Here x equals to 0, this means this is y axis. The point of y lies on the y line. The value of y lie on the y axis when x equals to 0, and the vice versa, when we put y equals to 0, then we find the value of x. It means the point which we putting in the graph line, it will lie on x axis. Okay, so this is called x intercept and y intercept. Now moving to next part. This is intersect, I earlier told you. Okay, now moving to next part. This is a question. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. एक क्वेश्चन दिया है आपके एनसीईआरटी में कि एक नोटबुक की कॉस्ट पेन के कॉस्ट के डबल है, तो हमने यहाँ पे लेट करा कि लेट नोटबुक कॉस्ट एक्स है और पेन की कॉस्ट कितनी है, बाई है. तो क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, यानी कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज एक्स इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. नाउ मेकिंग द इक्वेशन एक्स दिस प्लस वाई हेयर विल बी इन माइनस फॉर्म. एक्स माइनस का 2y इक्वल्स टू 0. दिस इज कॉल्ड माई लीनियर इक्वेशन हैविंग वेरिएबल 2. दिस इज two variable linear equation. Now moving to next, ax plus, here is an equation in the form of ax plus by plus c equals to 0. A comma b comma c are called the real number. Okay, real number are those number which having the value plus and minus, and x comma y are variables. Okay, ये क्या है, हमारे वेरिएबल्स है, और सी है हमारा कांस्टेंट है. ये कह रहा है एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कोई इक्वेशन है, वो कुछ वैल्यू इंडिकेट कर रही है जहाँ से आपको ए और बी सी की वैल्यू को बताना है. जैसे इक्वेशन है 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू 9.35, एंड मैंने 9.35 को LHS में लिया. जब प्लस फॉर्म LHS में आके माइनस में हो जाएगी. नाउ कंपेयरिंग लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, हेयर x and x, here एक a equals to 2, a having the value 2, b having the value 3 and c having the value minus का 9.35. okay, now this is second equation, x minus का 5y minus का 10. okay, तो x comma y here also a variable. Now comparing to this equation ax plus by plus c, here is also a equals to 1 because here is no element. Where when will be no element, here also 1 available always. तो a equals to 1 and b equals to minus का 5 and c equals to 10. Now moving to next, here is true. y इक्वल्स टू 3x प्लस का 5 हमको बताना है कि इक्वेशन ये ट्रू है या नहीं है. तो 2 वेरिएबल हैं यहाँ पे, एक x है और y है. लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रख लिया. वही करेंगे, x इक्वल्स टू 0 लिखेंगे तो 0,5. ओके, तो 0,5 के लिए ये वैल्यू हमारी ट्रू है क्योंकि y माइनस का 3x इक्वल्स टू
5 हैं। अगर हम x इक्वल्स टू 0 रख रहे हैं तो y इक्वल्स टू 5 आ रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ट्रू है, क्योंकि x 0 रखने पर y की वैल्यू 5 आ रही है और इक्वेशन में हमारी y की वैल्यू 5 दे रखी है। ऐसे ही अगर हम x इक्वल्स टू यहाँ पर 1 रखें तब देखते हैं क्या आता है, y माइनस का 3 इक्वल्स टू 5। ओके, it will be y equals to 8. Okay, it will be y equals to 8. X equals to 1, then y equals to 8. Okay, now check here is variable 1 comma 8. This is satisfy the equation y equals to 3x plus का 5, y equals to 3x plus का 5. Check this, y equals to 3x plus का 5. Now 3 equals to 1 plus 5 and this is y equals to 8. Now this also a satisfy equation. X equals to 0, then y equals to 5, satisfy the equation. Then we put the value x equals to 1, then y equals to 8. This is also satisfy the equation. Okay, now if we put x equals to minus का 1, we put x equals to minus का 1, then it will be y equals to minus plus by, no, equation is this, by minus 3 into minus का 1 equals to 5. It will be y plus का 3 equals to 5. It will be y equals to 2. No, this is not satisfy the equation. The equation will satisfy only when we put x equals to 0 and when we put x equals to 1. When put x equals to 0, it gives y equals to 5. It is real. Satisfy the equation. When x equals to 1, it gives the value y equals to 8. It is also satisfy the equation. Just we only check this value. Okay. Now next write a solution for each of the following. सोल्यूशन लिखना है आपको, सोल्यूशन लिखना है। क्वेश्चन हमारा दिया है 2x प्लस का y इक्वल्स टू 7। हेयर y इक्वल्स टू 7 माइनस का 2x। चूज़ और पुट x इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 और चेक दिस कि व्हाट इज वैल्यू इज दिस और नॉट। इफ वी पुट x इक्वल्स टू 0, x equals to 0, this is my equation. If we put x equals to 0, then here will be value of y equals to 7. This is satisfy the equation. When we put x equals to 0, then y equals to 7. This is true. When we put x equals to 1, तो y equals to 7 minus का 2, it will be 5. 7 minus का 2, it will be 5. तो y equals to 5. Yes, it is also a correct. है ना, जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो जाहिर है 7 में से 2 जाएगा तो y की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी। इट इज़ ऑल्सो सेटिस्फाई इक्वेशन x इक्वल्स टू 1 देन y इक्वल्स टू 5. इट इज़ ऑल्सो अ सेटिस्फाई इक्वेशन। व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 2, व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 2, इट गिव्स द रिजल्ट 2, 3 ऑल्सो सेटिस्फाई। ओके, तो 1 by 1 we put the value and we just check this equation will satisfy or not. When we put here minus value, then we also check this equation satisfy or not. Okay, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारी इक्वेशन इसमें दी है पाई x प्लस का y। आपको चेक करना है वैल्यू रख के x इक्वल टू 0, 1, 2, माइनस का 1। चेक करिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं, है ना। तो अगर x इक्वल्स टू हम 0 रख रहे हैं तो पहला x इक्वल्स टू 0 रखने पे y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9। ऐसे ही x इक्वल्स टू जब हम 1 रखेंगे तो हम पे इक्वेशन आ जाएगी 1, 9 माइनस का पाई। इस तरीके से आपको हर इक्वेशंस की वैल्यू निकालनी है और उसको बताना है कि वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है हम पे x इक्वल्स टू 4y। यहाँ पर भी आप 0, 1, 2, -1 पुट करके वैल्यू निकालिएगा। ओके, तो इस तरीके से कोई बहुत ख़ास क्वेश्चन नहीं आते, इसमें सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके बताना है। किस तरीके से सॉल्व होंगे वो हमने आपको बता दिया है। एक कॉमन क्वेश्चन आता है इस टाइप का कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। वैल्यू ऑफ के आपको फाइंड करना है। इफ़ x इक्वल्स टू 2 दिया है, y इक्वल्स टू 1 और इक्वेशन हमारी दी है 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू
के, 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू के हमको वैल्यू किसकी बतानी है, के की। तो क्या करेंगे, जो इक्वेशन में वैल्यू दी है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 2 इंटू 2 प्लस का 3 इंटू 1 इक्वल्स टू के, इट विल 2 2 जा 4 प्लस का 3 इक्वल्स टू के, इट विल बिकम द के इक्वल्स टू 7। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ के। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज कंपटीशन में भी पूछने लगता है। ओके, नाउ एक दो क्वेश्चन हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के देख लेते हैं और उसके बाद हमारा ये ऑफ हो जाएगा, हमारा चैप्टर नंबर लीनियर इक्वेशंस का जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इन जियोमेट्रिक, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, ज्योमेट्री, जस्ट चेक द स्पेलिंग, वी जस्ट राइट डाउन भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से बताया है। अब देखना यहाँ पर कैसे आता है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ ग्राफ y माइनस का x इक्वल्स टू 2। ओके, अब यहाँ पर आपको नोट करके रखना है कि y माइनस का x इक्वल्स टू 2, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू 0 1 कामा माइनस का 2 रख के, तो हम पे जो y की वैल्यू आएंगी वो सॉल्व होकर के क्या आएंगी, अगर x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो y इक्वल्स टू 2 आएगा, x इक्वल्स टू 1 रखेंगे देन y इक्वल्स टू थर्ड आ गया, y इक्वल्स टू थर्ड आएगा, देन x इक्वल्स टू माइनस का 2 रखेंगे देन y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो पेयर हमारे क्या बने, हमारे पेयर बने 0,2 1, थर्ड एंड माइनस का 2, 0। अब देखिए ये हमारा एक ग्राफ है। ठीक है, हमने बना लिया जस्ट ऐसे ही, आप लोग अच्छे से बनाना स्केल लेके, और ये हमारा ऐसे एक ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया और ये सर इधर हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 प्लस के नंबर, इधर भी हमारे 1 2 3 4 5 6, ये भी प्लस के नंबर हो गए, एंड हेयर -1 -2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 हो गए, और हेयर भी हमारे माइनस, क्योंकि हमारा ये माइनस का पोर्शन है, माइनस का चैम्बर है, फोर्थ चैम्बर माइनस है। पहला हमारा क्या है 0,2, यानी कि 0, और ये है हमारा 0 x एक्सिस, ये हमारा x है क्योंकि ये हमारा y है ना, हमें याद रखना है, और ये हमारा x है। ऐसे ही ये हमारा x नेगेटिव है, ऐसे ये हमारा y नेगेटिव है। तो हमारा क्या है, ये x है वैल्यू और ये y है, यानी कि x पे हमारा 0 है और y पे हमारा 2 है, तो पॉइंट हमारा कहाँ आएगा, ये आएगा, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 0,2। ऐसे ही ये हमारा x है, तो x की वैल्यू 1 ये हो गई, एंड y हमारा कितना है, थर्ड है, यानी कि ये है, ये आ गया हमारा पॉइंट, ये आ गया हमारा 1, थर्ड। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है माइनस का 2, तो माइनस का 2 x एक्सिस पे है, एंड और इनका 0, तो ये हमारा पॉइंट यहीं पे ही बनेगा। ठीक है, माइनस का 2, का 0। अब देखिए ये बनेगा पॉइंट, ये यहाँ पर, ठीक, हमारा पॉइंट बनेगा ये वाला ऐसे, और ये हो गया हमारा माइनस का 2, और ये हमारा पॉइंट बन गया ये। अब देखिए, अब इसको अगर हम मिला करके लाइन खींचें तो हमारी लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है, थोड़ी सी तिरछी हो गई, ये होगा पॉइंट, बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। ठीक है, स्केल से अगर आप लगाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। स्ट्रेट आने का मकसद ये है कि लीनियर इक्वेशन ग्राफ ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, if it will not come in a straight line, it will not a linear equation graph, it will be wrong। okay, तो लीनियर इक्वेशन नोट कर लीजिए, लीनियर इक्वेशन ग्राफ ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। ओके, ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। नाउ एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा ड्रॉ अ ग्राफ, इक्वेशन है हमारी 3x प्लस का 4y इक्वल्स टू 0। जब हम इसमें x और y की वैल्यू रखते हैं तब हम पे कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाती हैं। ओके, लाइन हमारी इधर उधर जा रही है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अगर हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो y हमारा आता है 3/2,
एक्स की वैल्यू को 2 रखते हैं देन वाई आता है 0, एक्स की वैल्यू -2 रखते हैं देन वाई आता है 3। ये वाले थोड़े कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं ग्राफ से रिप्रेजेंट करना, बट ये सिंपल है कि नहीं, दो को भी अगर आप रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे तो जितने भी उस इक्वेशन को सॉल्व कर करके आपके पास पेयर आए होंगे वो सारे के सारे पेयर स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, वैसे ही होंगे। अब ये देखिए इधर वैल्यू 0 है, ये 1 2 3 4 5, ऐसे ये 1 2 3 4, ऐसे ये -1 -2 -3 एंड डेड है। अब ये पहला है 3, 2, इसको छोड़िए, ये देखिए x = 2 एंड y = 0, x = 2 ये है और y = 0, 0 कहाँ जाएंगे बढ़ के, यही रहेगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा 2, 0। ओके, ऐसे दूसरा है हमारा x = -2 ये है, ठीक है, -2 एंड y = 3, -2 एंड y = 3 ये आएगा, ठीक है, ये आया, ये आ गया -2, 3। अब देखिए इससे मिला करके अगर हम कोई लाइन खींचें तो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ओके, ये जाएगी, है ना। तो दिस इज़ हमारी इक्वेशन की लाइन हो गई 3x + 4y = 0। तो दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ a straight line and this graph will always be in a straight form। ओके, तो x एक्सिस पे क्या है हमारा, x एक्सिस पे जो हमारे पॉइंट बने हैं वो हमारे कौन से बने हैं 2, 0, और जो हमारे y एक्सिस पे पॉइंट बने हैं वो हमारे बने हैं 0, जो हमारे y एक्सिस पे बने हैं वो हमारे बने हैं 0, 1.5 और -2, 3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, इसको आप लोग प्रैक्टिस करना। हमने आपको 2 ग्राफ बना के दिखाए हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा, और क्वेश्चंस करने के लिए इसमें आता है एग्जामिनेशन में। ड्रॉ x = 2। ओके, इस टाइप के जब हमारे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया हो कि ड्रॉ x = 2, तो इसका मतलब हुआ x + 0 y = 2। यहाँ पर जो इक्वेशंस हमारी बनती है वो हमेशा x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल में ही बनेगी। जैसे इसको हम बना करके देखते हैं, ये हमारी मान लीजिए हमारे वेरिएबल हो गए, और इस वेरिएबल में हमारा क्या दिया है, एक हमारा x है और ये हमारा y है। अगर x हमारा 2 है तो y हमारा 0 है। ओके, अब x ऑलवेज 2 2 2 एंड 2 ही होगा ना, क्योंकि 2 ही दे दिया क्वेश्चंस में, ठीक है। तो y हमारा क्या होगा, चेंज होता जाएगा, एक बार -1 होगा, एक बार 1 होगा, एक बार 2 होगा, ठीक है। जैसे x = 2 देन y = 0, है ना। फिर x = 2 y = -1। अब देखिए इनका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, ऐसे हमने ग्राफ बनाया और ये ग्राफ बनाया, ठीक है। अब ये मान लिए 1 2 3 4 5 गया, और ये भी हमारा 1 2 3 4 5 गया। अब देखिए x = 2, x एक्सिस तो ये है ना, ये हमेशा 2 हो गया, x = 2 देन y = 0 हो गया, फिर x = 2 y = -1 y = -1 के 1 की वैल्यू किधर होगी आपकी, इधर होगी ना, y = -1 ये होगा ना, -1 y = -1 ये आ गया, ठीक है। देन x = 2 y = 1 ये आ गया, देन x = 2 y = 2 ये आ गया। अब इस लाइन को अगर हम खींचेंगे तो ये ऑलवेज पैरेलल ही होगी, किसके, x = 2 जब दिया है तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो हमेशा y एक्सिस के बनेगा, y एक्सिस के बनेगा, क्योंकि x = 2 दिया है, तो ग्राफ किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा, है ना।
यानी कि जब हम x की वैल्यू दे रहे हैं तो हम देख रहे हैं ग्राफ हमारा y के पैरेलल बन रहा है। ऐसे ही जब y की वैल्यू गिवन होगी तो जो ग्राफ हमारा बनेगा वो हमारा x के पैरेलल बनेगा। समझ में आया ना? इस तरीके से आपको ये सॉल्व करके देखना है और इस टाइप के क्वेश्चंस को करके भी देखना है ना? हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करना, हम आपको दोबारा करके बताएंगे। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 2, क्वेश्चन है y इक्वल्स टू -4, क्वेश्चन है x इक्वल्स टू -5, क्वेश्चन है x इक्वल्स टू 10। ये जितने भी x के हैं वो y के पैरेलल बनेंगे और जो y का है वो x के पैरेलल बनेगा। इस तरीके से आपको ये इक्वेशन सॉल्व करके दिखानी है और बताना है कि नंबर लाइंस का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और उससे बनने वाला ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन में होता है या नहीं होता है। अब जैसे क्वेश्चन आता है हमारा, सॉल्व द इक्वेशन 3x माइनस का 2 इक्वल्स टू 2x प्लस का 3 एंड represent the solution on the number line। तो क्या है, 3x माइनस का 2 इक्वल्स टू 2x प्लस का 3। कैसे होगा ये होगा हमारा 3x माइनस का 2x, इट विल बी x इक्वल्स टू 5, है ना? तो जब x इक्वल्स टू 5 है तो इसका मतलब है ये फिर से हमारा बाई एक्सिस पे बाई के पैरेलल बनने वाला एक हमारा कोई ग्राफ होगा। उसी के हिसाब से हम इसकी वैल्यू को मेजरमेंट भी करेंगे। जब x इक्वल्स टू 5 आ गया तो इसका मतलब है ये x प्लस का 0 बाई इक्वल्स टू 5 आया है। अब यहाँ पर x की वैल्यू तो ऑलवेज क्या होगी, 5 5 5 5 ही होगी। 5 5 5 5 5 है ना? x की वैल्यू हमेशा 5 5 होगी। y की वैल्यू पहले हम x इक्वल्स टू 5 है तो y की वैल्यू हम मान लीजिए 1 रख ले रहे हैं, ठीक है? y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 रखते रहे हैं, फिर y की वैल्यू -1 कर दे रहे हैं, फिर y की वैल्यू 0 कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो हम ग्राफ बनाएंगे वो हमारा बनने वाला ग्राफ y के पैरेलल आएगा। ओके, समझ गए ना कि किस तरीके से हमको करना है, कैसे वैल्यू निकालना है ना? ये वैल्यू आप निकाल के देखना। आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट करना, हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। ओके, तो नाउ हमारा एंड होता है चैप्टर नंबर 4। इट विल बी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको करा दिया है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, NCERT को देखना, उससे मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। और हाँ, अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे हमें एक हौसला मिलता है ताकि हम आपको और बेहतर तरीके से पढ़ाएं और रेगुलर होकर के पढ़ाएं। आप लोग देखना ज़रूर और हमें इसके बारे में बताना कि आपको पढ़ के कैसा लगा और आगे आप कौन सा लेक्चर चाहते हैं, किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो हम आपको वो लेक्चर भी बना के प्रोवाइड कराएंगे। ओके, बाय बाय।